Hello everyone, this is Ruchika, Tarot Diva, Tarot card reader and spiritual healer. So today this is not a pick a card reading. Today I'm gonna be reading for various zodiac signs, how their January 2021 month will be. So guys, here I'm using this deck, which is Rider-Waite deck. I'll be taking out 3 cards from this deck, which will depict your first 10 days, next 10 days and last 11 days, how your January month will be during these days. Plus I'll be using this angel oracle card for guidance, what the angels are guiding you, what the God is guiding you, what is the message of angels for you all. Plus I'll be taking 2 rune stones to know about your January month, that how your January month will be. So let's begin with the readings, guys. So this reading is for Virgo, the people who are born between August 22nd and to September 23. So I'll be taking 3 cards from the Rider-Waite deck, guys, right now. I'll be taking the first card for the first 10 days of January 2021. So, okay, I got your first card, which is King of Swords, okay? King of Swords. Next card for next 10 days, January 2021 for Virgo is the Hermit. Okay, now the last card for last 11 days of January. So I have the Star. Okay, thank you, angels. Now I'll be taking the card from the Angel Oracle deck to let you know what the angels are guiding you and what they are saying, what the angels are telling you. Okay, so the card I got is Let Your Past Go. Okay, so I'll be taking 2 rune stones now. Okay, so the 2 rune stones which I got are this. This is like a hammer. This is not A. And this is like H alphabet. Okay. So Virgo, let's begin with your first 10 days कि आपके first 10 days क्या बोल रहे हैं आपके लिए. So you have got the King of Swords. So King of Swords कहीं ना कहीं ये बताता है कि you have got the help of some masculine figure और in your life जो आपको guide करेंगे in first 10 days में कि कुछ जैसे सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ डिसीजन लेना है या कुछ सोच रहे हैं. सो समबडी विल गाइड यू एंड ही विल बी ऑफ वेरी अथॉरिटेटिव नेचर. उनकी बहुत अथॉरिटेटिव नेचर भी होगी और लेकिन वो आपको फिर भी गाइड करेंगे. और तक जो मुझे लग रहा है ये कुछ जैसे लीगल या बिजनेस रिलेटेड या करियर रिलेटेड इश्यूज जो आपके होंगे उनकी गाइडेंस के लिए आप को लीगल हेल्प और समथिंग लाइक दैट, जो व्हाट आई कैन फील, व्हाट आई कैन सेंस इज, तो उनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड ही विल गाइड यू थॉरली व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. एंड आई थिंक यू शुड सीक हिज एडवाइस ऑल्सो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें एडवाइस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है लाइफ में. सो आई थिंक दिस इज़ द मोमेंट व्हेन यू नीड टू टेक एडवाइस ऑफ समवन. सो डू नॉट हेजिटेट टू टेक एडवाइस ऑफ समवन. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यू शुड नॉट बी हार्श इन योर वर्ड्स. जैसे होता है ना कि हार्श हो जाना कई बार, समटाइम्स यू नीड नॉट टू बी हार्श. कुछ चीज़ों को पोलाइटली भी किया जा सकता है. सो आपको वो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी. समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं या आपको पसंद नहीं आ रही होती हैं, बट एनीवेज थोड़ा डील करना पड़ता है. लेकिन हार्श नहीं होना है किसी के साथ भी, इज़ व्हाट आई फील ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 10 days ऑफ जनवरी. बी पोलाइट विद एवरीवन एंड इफ समबडी कम्स फॉर योर हेल्प, so do take their help, so because this will be for your benefit only. So the help may be I am telling you, it's not about your marriage or something. It may be about your some legal issue or career related issues, what I feel. And you need to communicate. ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि communication बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लोगों के साथ, but do not be harsh in your words. बस यही. So next 10 days देखते हैं Hermit क्या बोल रहा है आपको. Hermit is
ये 9 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है, विच इज यू नीड टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन एंड फाइंड द आंसर्स विद इन योर सेल्फ। कई बार होता है कि आपने एडवाइस भी ले ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट ऑन द क्लियर पाथ। सो यू नीड टू खुद के अंदर थोड़ा देखिए, यू नीड टू सर्च विद इन यू, फोकस करो अपने अंदर भी थोड़ा सा। और ये भी थोड़ा सा कार्ड ये बता रहा है कि आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपको रोशनी दिखाए, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको लाइट दिखाए। यू नीड सपोर्ट ऑफ समवन इज व्हाट आई फील। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जैसे कभी हमें ऐसा लाइफ में कोई चाहिए होता है जो हमें रास्ता हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हमें वी नीड हेल्प ऑफ समवन टू उसको अच्छे से उस रास्ते को पार करने के लिए। सो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। आपकी जो एनर्जीज मुझे अभी आ रही हैं वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज स्टेट में जैसे लग रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज आई एम फम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। सो मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर डेफिनेटली होंगे जो बहुत कंफ्यूज स्टेट में चल रहे हैं अभी, रिलेटेड टू समथिंग इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो रिलेटेड टू career wise this is a good time, but do not take risky do not make any risky investments in, मतलब जिस चीज़ पे आपको ट्रस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दी है ना। सो उस तरह से नहीं करना है, थोड़ा सब कुछ सोच के समझ के, सब कुछ देख के, बी क्लियर इन एवरीथिंग, सब कुछ ध्यान से देखना है, जो इज़ व्हाट आई फील जब भी कोई चीज़ करनी है उससे पहले। और अगर रिलेशनशिप की बात करें, सो मैं रिलेशनशिप में आपका ये कार्ड ये बताता है कि यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। सो नो वट यू रियली वॉन्ट, आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि यू योर सेल्फ इज नॉट श्योर, कोई अगर ये कर रहा है तो आप उससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा ये नहीं किया, फिर जब वो करना स्टार्ट करेगा तो आप बोलेंगे अच्छा अब ये नहीं किया। सो पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए कि व्हाट डू यू एक्चुअली नीड एंड व्हाट डू यू रियली वांट। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम, मैं आपको ये बोलूँगी, एंड soon you will be ready for the fresh start। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि give a little break, go for a vacation or spend some time alone। थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बैठिए, सोचिए, मेडिटेट कीजिए, जो मुझे अभी लग रहा है कि यू नीड टू मेडिटेट। योर चक्रास आर इम्बैलेंस्ड इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम everyone। So I think your root chakra is very imbalanced right now, so you need to stop expecting things from others। सो इज़ वट आई फील। और हेल्थ के बारे में भी यही बोलूँगी कि रिड्यूस योर स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस को मत कीजिए, योगा कीजिए, गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, डू मेडिटेशन एंड दैट्स इट। यही बोलूँगी मैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। सो लास्ट जो आपका कार्ड है वो है द स्टार का कार्ड। सो स्टार का कार्ड ये बोलता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओवर। जो भी आपका स्ट्रेस चल रहा था, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग ड्यूरिंग दिस 20 days इज ओवर नाउ। यू आर रेडी फॉर द फ्रेश स्टार्ट एंड योर चक्रास सी। अब ये जो कार्ड था, देखो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि योर चक्रास आर इम्बैलेंस्ड, बट आई थिंक यू विल मेडिटेट, यू विल कंसंट्रेट और आपके चक्रास भी बैलेंस में आएंगे। ऑलराइट, बस अपनी एनर्जी को फालतू वेस्ट नहीं करना है कहीं भी। एंड आपका जो लास्ट के 11 डेज आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। some unexpected good news is coming on your way, some miracle is coming on your way, and it also indicates some your artistic hobby of yours you might concentrate on is what I feel। करियर वाइज भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो तो दिख रहा है। और वो कहीं ना कहीं फेम का कार्ड है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है और ये गुड टाइम है। अब अगर आप इन्वेस्ट करने का बाई चांस, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी समवेयर, देन दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। That means the last 11 days of January 2021 is the right time for you people to invest if you want to invest somewhere। About relationship, this is a very good card. If you have some issues, if
in the past, if you were facing some issues in your any of your relationship, the relationship is not about only your soulmate. It may be your cousin, it may be your sister, it may be anyone, it may be your in-laws, whosoever it may be. So try to resolve the relationships, because what happens is ki when you do not when you are stressed because of some relationship is not working in your life, so उससे क्या होता है कि you are surrounded by the negativity all over your aura and all over your head. So in order to remove that negativity, you need to sort out the things that are troubling you, because आप ट्रबलिंग आपको होगी तो फिर चीज़ें सेटल नहीं हो पाती हैं. सो बट दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी गुड कार्ड. सो ओवरऑल बहुत अच्छा, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं. कीप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स. सोचते रहिए, सपने देखते रहिए, एफर्ट्स डालिए. अगर आप इस टाइम पे एफर्ट्स डालते हैं किसी चीज़ को पूरा करने के लिए तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क. लास्ट के 11 डेज आर वेरी वेरी गुड फॉर यू वर्गो. सो लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोल रही हैं. Let your past go. See, the burden of carting your past around has made you weary. ठीक है, आप अपने पास्ट को लेके चल रहे हैं जिससे आपको थोड़ी थकावट लग रही है, मेंटली थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लग रहा है. डियर वन, इट्स टाइम टू सेट दिस बर्डन डाउन. प्लीज इस बर्डन को खत्म कर दो. कीप ओनली द लेसन्स एंड द लव एंड लीव एवरीथिंग एल्स बिहाइंड. सिर्फ आपने अपने साथ आगे लोगों का प्यार लेके जाना है, लेसन्स लेके जाने हैं. बाकी चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही हैं उनको वहीं का वहीं छोड़ दीजिए. यू डोंट वांट इट और नीड इट. आपको इन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वट एवर इज़ गॉन इज़ गॉन. जो चीज़ बीत गई, बोलते हैं ना, बात गई सो बीत गई सो बात गई, ऐसा कुछ होता है. सो इसलिए एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड यू. जो सफ़र करना था आपने या जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सब खत्म हो चुकी हैं. एंजल्स आर विद यू. सो कीप योर थॉट्स एंड सिचुएशंस हाई. यही बोलूँगी कि जितना अच्छा सोचेंगे, कीप योर थॉट्स हाई. सो ताकि जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा. सो दिस इज़ व्हाट आई फील. और अब आते हैं रून स्टोन के ऊपर. सो ये जो रून स्टोन है वो ये बोल रहा है, ये है आपका जैसे आपका टावर कार्ड होता है ना, सो ये सेम रून स्टोन है. इट इज़ लाइक द टावर कार्ड की देयर मे बी लिटिल ड्रामा, देयर मे बी लिटिल एंगर, देयर मे बी लिटिल डिस्ट्रक्शन, आई विल से. आप थोड़ा सा टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ ये जो टाइम है थोड़ा सा वही बात है कि इफ़ यू विल लेट गो योर पास्ट, सो आगे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपने पास्ट को अपने साथ आगे लेके जाएंगे, एंगर ड्रामा अगर ऐसा होगा तो फिर वो चीज़ आपके लिए ही ठीक नहीं रहेगी. सो आई थिंक यू शुड लेट गो योर पास्ट, जैसे कि एंजल्स, जैसे कि गॉड आपको एडवाइस कर रहा है. एंड दिस रून स्टोन इज ऑफ जॉय, ऑफ हैप्पीनेस. वो ही देखो कैसे ऑल कार्ड्स एंड रून स्टोन्स आर सिमिलर. ये जो रून स्टोन है वो ये दो कार्ड को डिपिक्ट कर रहा था, और ये जो रून स्टोन है ये सन स्टार कार्ड को डिपिक्ट कर रहा है. दिस इज द स्टोन ऑफ विक्ट्री, जॉय, हैप्पीनेस, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, सब कुछ है मतलब इसमें. सो यही सब ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता भी है, ये फेज भी निकल जाएगा, ये फेज आएगा. बट इस फेज में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना है. नो नीड फॉर एनी स्ट्रेस, क्रिएटिंग एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज जितना आप सोचेंगे फिर उतना ही स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ जाता है. सो इस कार्ड की तरह शाइन करना है थ्रू आउट द मंथ. ठीक है. एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनको लेट गो करना है एंड मूव अहेड. आगे आने वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा आ रहा है. सो दिस वॉज ऑल फॉर द वर्गो. सो गाइज, stay tuned for my next upcoming videos. Please like, share and subscribe my channel so that you may be notified about my next upcoming videos. So please guys, take the things which will resonate with you and please leave the things which will not resonate for you, because this is a general reading for all the Virgo people. So some things will resonate and some things will not, because I am carrying lots of energies right now with me. So many Virgos are there. So I'll be when I was reading, I was taking lot of energies with me. So all the best guys, and enjoy your new year and happy new year. All the best. Bye bye.